Now, the next topic will be supermarket, which is one of the classification of large scale retailers. Now, see, a supermarket is a large retailing business unit selling wide variety of consumer goods on the basis of low price appeal, जैसे कि डी मार्ट, ठीक है, या फिर अपन बोले रिलायंस फ्रेश. सो ये सब क्या है, एक सुपरमार्केट है, जैसे बिग बास्केट या बिग बाजार. ठीक है. सो there are wide variety of products which are in which self service is there, heavy emphasis is there on merchandising, etc. So the goods here traded are of very generally food products, yeah, other than low price products. ठीक है, like grocery utensils, clothes, electronic appliances, household goods, yeah, medicines, etc. So they are generally situated at the main shopping centers. ठीक है. एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है वॉलमार्ट. Walmart is one of the best example of supermarket in US, and Walmart is the most I must say most top companies in the retailing business. ठीक है. So there's the unique feature of supermarket is absence of salesman. यहाँ पर कोई salesman नहीं होता, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ये वाला प्रोडक्ट परचेस करना है या नहीं परचेस करना. It is totally depend on you क्या what you want to purchase. So a supermarket generally carries a complete line of food items, yeah, groceries. It always operates on self-service basis. There are certain advantages of supermarket like one roof, low cost. So supermarkets offer a variety of products at low cost under one roof. So these outlets are therefore not convenient, but they are very much economical to the buyers. ठीक है. Next we can say central location. Like the supermarkets are generally located in the main heart of the city. Then wide selection रहता है, बहुत सारे different varieties of goods are there, different designs, different colors, etc, etc. Then no bad debts. No bad debts means everything is based on cash basis. सारी चीजें जो है कैश बेसिस पर रहती है, तो इसमें कोई भी क्रेडिट तो होगा ही नहीं. ठीक है. सो देयर विल बी नो बैड डेब्ट्स. नेक्स्ट, कुछ apart from this there are certain disadvantages like no credit will be there because each and every person has to give cash. ठीक है. Next, no personal attention will be there because there is a principle of self service. Mark my words, यहाँ पर important है self service, बहुत important है. ठीक है. Then huge cost because आपको इसको रन करने में ह्यूज ओवरहेड कॉस्ट लगेगी, ओवरहेड एक्सपेंसेस लगेंगे जो कम प्राइसेस के तहत उसको आप कवर अप नहीं कर सकते. एंड इवन the person will be involved in huge capital requirement as well because establishing such a kind of market, it involves huge turnover, it involves huge investments. Now these are the two pictures which are depicting supermarkets. One is of Walmart and the other one is Kroger. Both are US based companies, both are US based retailers, retail chains. ठीक है. So you can see in the picture that किस तरीके से उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइन बाय लाइन जमे हुए होते हैं, वेरी सिस्टमेटिक फॉर्म में. सो गुड्स आर ऑलवेज जनरली लोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म. तो हर एक पर्टिकुलर सेक्शन दे रखा होता है कि ये सेक्शन क्लोथिंग का होगा, ये सेक्शन पर्टिकुलर फूड्स का होगा, ये सेक्शन वेजिटेबल्स का होगा, ये सेक्शन ग्रोसरी का होगा. तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में वो सेक्शंस बटे हुए होते हैं. सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ supermarket. You can also write examples like Reliance Fresh, Walmart, Kroger. Then you can also go for D-Mart. These are certain examples. ठीक है. Okay, now the next is mail order businesses, yeah, mail order houses. Now see, before moving further, let's take an example. आपने टपरवेयर का प्रोडक्ट का नाम सुना होगा. टपरवेयर का आपको कहीं पर भी शॉप नहीं दिखेगी. ठीक है. या फिर आपने न्यूज चैनल पर देखा होगा naptol.com. ठीक है. या बहुत सारी ऐसी न्यूज या चैनल्स होती है जिस पर बहुत से ऐसे मर्केंडाइजेस रहते हैं या प्रोडक्ट्स रहते हैं जो आपको एक एडवर्टाइज करते हैं. वो बोलते हैं कि आप इस पे कॉल करिए और इसके ऊपर आपको इतना इतना इनाम मिलेगा और ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कोई पर्टिकुलर शॉप या कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ पर प्रोडक्ट रखा हुआ है. ठीक है. इट्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट ऑफिसेस. आपने देखा प्रोडक्ट वर्चुअली और आपने उस प्रोडक्ट को क्या करा, आपने ऑर्डर प्लेस किया. सो मेल ऑर्डर हाउसेस, मेल ऑर्डर, मेल मींस पहले के समय पे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता था. आज की तारीख में एज डिजिटलाइज वर्ल्ड है
तो यहाँ पर ईमेल के फॉर्म में या मैसेज के फॉर्म में या कॉन्टेक्ट करने के फॉर्म में, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के फॉर्म में उसको किया जाता है. So it's a kind of retail business which receives orders and delivers the articles through post. So there is no direct personal contact between the buyer and the seller. ठीक है, यहाँ पर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता. Your potential customers are approached through the help of advertisements, through catalogs, through samples and bills, through price list. तो ये टपरवेयर का जो बिजनेस है वो प्योरली इट इज बेस्ड ऑन मेल ऑर्डर हाउसेस. ओके, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. सो दिस काइंड ऑफ जो इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं ये सब वर्चुअल बेसिस पे चलते हैं. क्लियर? इसको अगर अपन ई कॉमर्स से कंपेयर करें तो ई कॉमर्स इज डिफरेंट थिंग एंड मेल ऑर्डर हाउसेस इज डिफरेंट थिंग. तो अपन ये कह सकते हैं कि पहले के समय पे जब ई कॉमर्स इतना व्यापक रूप पे नहीं था उस समय पे मेल ऑर्डर बिजनेसेस चलते थे. ठीक है, और आज की तारीख में मेल ऑर्डर हाउसेस का जो एक्सटेंशन है वो ई कॉमर्स. क्लियर? सो देयर आर सर्टन एडवांटेजेस एज वेल, लाइक देयर इज लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट. आपको एक अलग से बिल्डिंग नहीं बनानी है, आपको अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं एस्टेब्लिश करनी है. There is elimination of middlemen. So this is the biggest advantage of mail order business as from the point of view of consumer. यहाँ पर एक जो proper chain होती है उसमें कमांड नहीं किया जाता है. कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से बात करता है और उसके थ्रू सेविंग्स भी कर पाता है. एब्सेंस ऑफ बैड डेब्ट, क्योंकि आपको क्रेडिट के बेसिस पर पैसा नहीं दिया जाएगा, प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा, सारा कैश बेसिस होगा. नेक्स्ट, वाइड रीच. ऑब्वियसली एक टेलीविजन पर अगर कोई चीज आ रही है मतलब कि उसको पूरा वर्ल्ड देख पा रहा है. वो जो चैनल जहां जहां पर चल रही है वहां वहां का मार्केट वो कैप्चर कर रही है. ठीक है, बट यहाँ पर यही है कि पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो पाता है. प्रमोशन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है. डिलीवरी कभी कभी हो सकता है डिले हो सकती है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इट मे बी सर्टन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कैन बी देयर. फ्रॉडुलेंट बिजनेसेस हो सकते हैं जो आपसे पैसा ले लें और आपको प्रोडक्ट ना पहुंचाएं. सो इस तरीके के जो हाउसेस होते हैं वो मेल ऑर्डर बिजनेस कहलाते हैं. See, these are certain points which has to be kept in mind whenever we are talking about mail order businesses. Now the products should be, यहाँ पे पूरी बात जो होगी वो goods के ऊपर होगी. So these goods should be standardized goods. ठीक है, graded goods होना चाहिए और branded goods होना चाहिए. Clear? Tupperware is a very much standardized product. It is graded product and it is branded as well. Next, they should be light in weight and convenient for sending by post. तो ऐसे प्रोडक्ट हो जो बल्कियर ना हो. आप एक वॉशिंग मशीन को बाय पोस्ट नहीं भेज सकते. हाँ, एक छोटा कंसाइनमेंट हो सकता है जिसको आप विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस यू कैन सेंड इट. दे शुड बी वेल नोन फॉर देयर यूटिलिटी सो दैट देयर इज नो नीड ऑफ कन्विंसिंग द पीपल अबाउट द यूजफुलनेस. लोगों को उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की यूजफुलनेस के बारे में पता होना चाहिए. तभी जाकर ये इस तरीके के जो बिजनेस है, इस तरीके के जो गुड्स हैं वो सक्सेस होंगे. They should be relatively valuable in proportion to their weight. जितना उनका वेट है उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यूएबल भी होना चाहिए. टपरवेयर की जो बॉटल्स होती हैं वो वैल्यूएबल होती हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज वी हैव गिवन सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू इट एंड इट इज वेरी लाइट वेट. सेकेंड थिंग इज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि उसका जो प्लास्टिक होता है वो बहुत क्वालिटी वाइज प्लास्टिक यूज किया जाता है. ठीक, दे शुड बी अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होना चाहिए. लोगों को नहीं पता कि कब उन्हें किसी चीज को परचेस करने की नौबत आए. सो देयर शुड बी अ रिलेटिवली गुड स्टॉक इन पर्टिकुलर वेयरहाउस अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. दे शुड नॉट बी इजीली पेरिशेबल. ऐसे प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए कि जो इजीली पेरिशेबल हो जाए, जो जिसका समय जो है वो कम समय के लिए वो प्रोडक्ट हो, लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट होना चाहिए. दे शुड नॉट गेट डैमेज्ड इन ट्रांजिट. जब भी आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसफर करते वक्त उसमें कोई टूट फूट ना हो, उसमें कोई डैमेजेस ना हो. दे शुड नॉट बी लोकली अवेलेबल. और हाँ, वन मोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे प्रोडक्ट ही आप मेल ऑर्डर हाउस में सक्सेसफुल है जो प्रोडक्ट लोकल लेवल पर अवेलेबल ना हो. ठीक है, लोकल लेवल पे उन प्रोडक्ट की इतनी मांग ना हो, लोकल लेवल पे उस प्रोडक्ट की इतनी अवेलेबिलिटी ना हो. सो दीज सर्टन points which has to be kept in mind whenever we talk about goods which are suitable for mail order businesses. Now see, the last one is vending machines. See, vending machines का एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल I'll share with you. You are all are aware of ATMs.
ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स है ना, एटीएम जिससे हम पैसा विड्रॉ करते हैं, आजकल तो पैसा हम डिपॉजिट भी कर पाते हैं. सो एटीएम्स आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेंडिंग मशीन. इवन ऑन रेलवे स्टेशंस एक वेंडिंग मशीन होती है जिससे आप वाटर की जो केन होती है, पानी की जो बॉटल्स होती है, उनको आप पैसे डालो, उसके अंदर कॉइन डालो और वो आपको बॉटल बाहर फेच आउट करेगी. सो दीज आर ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेंडिंग मशीन. ये जितनी भी मशीन्स बनाई गई, जितना भी बिजनेस के ऊपर फ्लोरिश किया गया है, ये सब वेंडिंग मशीन्स के कॉन्सेप्ट पर ही चलाया गया है, बढ़ाया गया है. तो वेंडिंग मशीन्स आर द न्यूएस्ट रेवोल्यूशन इन द मार्केटिंग मेथड्स. कॉइन्स आर बीन यूज्ड फॉर कॉइन्स और इन some places notes are also been used for operating vending machines. लाइक ये हमेशा उन प्रोडक्ट्स में डील करता है, द प्रोडक्ट्स लाइक हॉट बेवरेजेस, प्लेटफॉर्म टिकट्स, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, न्यूज़पेपर्स, वाटर बॉटल्स एक्सेट्रा. इन मेनी ऑफ द नेशंस दिस कॉन्सेप्ट्स आर बीन यूज्ड. बहुत सी जगह पे ये कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी यूजफुल हो रहा है और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं. इन इंडिया the example is automated teller machines, ATM services in bank. So as these machines altogether change the concept of banking, because आपको बार बार अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है विड्रॉ करने के लिए, आपको बार बार स्लिप भरने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट वेंडिंग मशीन पे जाओ, आप उसके अंदर अपना कार्ड इंसर्ट करो एंड यू विल गेट द अमाउंट वॉट एवर यू आर going for it. So vending machines are always useful for selling pre-packed brands of low price products. वेंडिंग मशीन में आप वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो ऑलरेडी प्री पैक्ड है. ठीक है, प्री पैक्ड के अलावा जिसका कॉस्ट जो है वो कम है, जिसका प्राइस जो है वो कम है. ठीक है, सी इफ यू टॉक अबाउट डिसएडवांटेज, तो वेंडिंग मशीन का एक बहुत बेसिक सा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि उसमें रिपेयर की कॉस्ट ज्यादा लगेगी, मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगी, पहला. दूसरा ये है कि जैसे इंडियन कंज्यूमर को प्रोडक्ट को हाथ में लेकर देखने की आदत है, तो जब आप वेंडिंग मशीन से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें कंज्यूमर इस पर्टिकुलर फिजिकल कांटेक्ट को या इस पर्टिकुलर पर्सनल कांटेक्ट को प्रोडक्ट के साथ नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट प्री पैक्ड जो आपकी मशीन के अंदर है. अगर आपने कॉइन डाला और बाय चांस वो प्रोडक्ट वैसा ना निकला जैसा वो फोटो में दिख रहा है, सो दिस विल बी द लूप होल. सो but still these machines have made many of the operations very reliable, and these machines are providing higher turnover in the form of income, in the form of profits to many of the consumer product companies. So that's all from the point of view of vending machines. In this, one topic is not there according to the course, that is consumer cooperative societies. ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो स्टोर है वो अकॉर्डिंग टू द कोर्स इसमें नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डेल्ट अप इन चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसा होता है. सो दैट इज ऑल फ्रॉम द कॉन्सेप्ट.